कल रिकॉर्डिंग भेजी थी, मिल गई आप लोगों को? किसकी रिकॉर्डिंग थी वो मैंने कहाँ भेजी थी मैम आपने? मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की थी। कहाँ पे मैम? ऊपर चैट में क्या? चैट में। चैट में रिकॉर्डिंग स्टार्ट की अभी कुछ नहीं जल्दी से आया। बात करना पड़ा। मैम आप YouTube पे चैनल बना के करने वाली थी ना अपलोड? यूट्यूब पे कल मैं ऐसे देख रही थी कि डायरेक्ट हो जाती है डेली की डेली, तो मैं डेली सेंड कर दूं। फिर ना सर आ गए थे तो मैंने कि जल्दी से साइन अप कर दिया था, तो इसलिए चेक करना कि किसके नहीं भेजा आपने? नहीं भी। अच्छा ठीक है, लास्ट में मेरे ख्याल से अमन या अनिल के अमित के पास में से किसी के पास होगी, देखना। और नहीं हो तो फिर मैं दोबारा जनरल में डालूंगी आपकी बार, ठीक है? चलो मैम YouTube वाला ट्राई कर लेना, वो सिस्टम सही रहता है। हाँ, वो भी देख लेंगे बेटा, है ना, वो कर लेंगे। हाइपरबोला के क्वेश्चंस किए? यस मैम, हो गए सारे। हो गए? एनी डाउट? यस, कोई डाउट नहीं ठीक है है। मैम, एक बजे। यस मैम। कोई डाउट नहीं है? चलो है मैम। मैम बता दो। हाँ चलो मैम, डाउट है। हाँ हाँ, आपके डाउट्स क्लियर करके कि भाई मैम अब हो गए डाउट्स क्लियर, आगे चलो, तभी आगे जाएंगे। ओके, डोंट वरी। यस, दिस इज एक्सरसाइज 11.4 hyperbola. मैम क्वेश्चन नंबर 15। Okay. Yesterday I told you to solve question number 1 to 6. ये मैंने कहा था आपको सॉल्व करने। इसमें पहले बताओ कि 1 to 6 में कोई डाउट है क्या नो मैम, ये तो आसान हो गए। सबको? होल क्लास? आपने आसान वाले तो करने हैं। होल क्लास किसी को डाउट नहीं है? 1 to 6? नो मैम, नो मैम। Question number 7 sir. Your question is 15, Aman? यस मैम, लास्ट क्वेश्चन। Last question, okay. But before last question, I want to solve these questions also. If all cadets have not solved this, so first let us take one question from 7, 8 and 9. So which question will I must solve from 7, 8, 9? बताओ कौन सा करें? सेम ही है मैम, कोई भी कर दो। Any? Okay. So वही सही करा दो मैम, पहले 15वां करा दो। okay, vertices and foci are given. In question number 8, vertices is 0, plus minus 5. It means your focus lies on y-axis. You can see that vertices have x coordinate is 0. It means foci lie on y-axis. So your value of A is equal to minus A is. We have to find out B. For equation of hyperbola, we must know the value of A and B. So how can we find out here? That A square plus B square is equal to C square. So B square is equal to C square minus A square. And that is 64 minus 25. That is equal to, now we have 39. है ना? 39. B squared equals to 39. So required equation of hyperbola. Required equation of hyperbola. X is y square, not x square. Y square upon A square minus x square upon
25 y square upon 25 minus x square upon 39 equals to 1. This is required equation of hyperbola. Okay, as same question number 9 is same. Question number 7, foci lies on x-axis. So equation of hyperbola will be x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. Okay. This solution is same for 7 and 9 also. Yes. Now select question from 10 and 11. Select question from 10 and 11. Foci and transverse axis and conjugate and length of conjugate axis is given. Which question I will solve? तो हो जाएंगे मैम इजी। करने दो, देखो क्लास में तो बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी से नहीं हुआ तो मैम कोई पूछे तो पूछ लो मैम, किसी को डाउट हो तो बताना। प्रॉपर मैम बता दो ये मैम कॉन्जुगेट वाले। conjugate वाला, okay. This question number 11. Question conjugate axis means जो कि जिसमें वैल्यू b की वैल्यू पता है आपको। conjugate axis की लेंथ 2b. Length of conjugate axis is 2b. b equal to 12. So foci, again you can see that foci lies on y-axis. So c, the value of c is plus minus 13. Foci lies on y-axis. So when you write the equation of hyperbola, then you have to take care that the equation has y square is positive. Okay. Conjugate axis of length 24. 2b is equal to 24. So b is equal to 12. B of A, so A minus 144, that is A square is 25. So required equation of hyperbola y square upon 25 minus x square upon 144 equals to 1. This is required equation of hyperbola. Yes. Now out of 12 questions, let us solve. Question number 12. Foci 3 root 5 comma 0 and latest rectum is of length 8. Now latest rectum is given to you. Latest rectum 2b square upon 8. Question number 12. Foci is plus minus 3 root 5 comma 0 and length latest rectum is 8, यानी 2b square upon 8 is equals to 8. तो c है आपके पास। मैम हाइपरबोला ऐसे हो सकता है कि एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे? नहीं, ऐसा नहीं, वो पैराबोला बन जाएगा और वो भी दो पैराबोला अलग अलग, है ना, एक हाइपरबोला कभी नहीं होगा। ठीक है। हाँ, तो c की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 3 रूट 5 और 2b स्क्वायर करें, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a. Now see, how can we find out the value of a, b and c? C we have b square is 4a and we know that c square is equals to a square plus b square. So c square की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 3 से 9, 9 5 से 45 plus minus 3 root 5 square is 45. A square plus b square is equal to 4a. So now this is quadratic equation in A. A square plus 4a minus 45 equals to 0. 9 5 now 45. 9 minus 5 4. So a square plus 9a minus 5a minus 45 equals to 0. And the factors are a plus 9
plus 9 equals to 0. So factors are a plus 9 and a minus 5 equals to 0. So the value is a equals to minus 9 and plus 5. A equals to minus 9 and plus 5. B square minus 9 for the 36. That is not possible. No? The square value is negative. That is not possible. So we substitute a equals to 5. Then b square equals to 4 into 5 is 20. B square is 20. b square 20 आ गया. a आपका 5 है यानी a square हो जाएगा 25. So required equation of hyperbola. Foci lies on x-axis. So equation of hyperbola x square upon 25 minus y square upon 20 equals to 1. Clear? देखो थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? मैंने बोर्ड पे नहीं किया बेटा, मैंने कैसे कर दिया. आ रहा है समझ में? ठीक है, आ गया? ये ऐसे ही करना है. Yes, नेक्स्ट क्वेश्चन भी Yes, ऐसे. ma'am. ये जो है ना 13th क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो सेम. अब आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15. दोनों क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड पे कर लेते हैं, है ना. वर्टिसेस नोट करो क्वेश्चन. वर्टिसेस प्लस माइनस 7,0 एंड इसेंट्रिसिटी इज गिवन 4/3. और 15th क्वेश्चन फोकाई इज 0, प्लस माइनस √10 passing through 2,3. So please note down this question. I will solve this question on board. बेटा दो. सी मैम, जैसे कि एक वर्टाइसिस नहीं मैम, मतलब ई है तो मैम उससे सी और ए तो आई है. हाँ, इसेंट्रिसिटी c अपॉन a, है ना. क्या था क्वेश्चन बताओ जरा. व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर 14? वर्टाइसिस प्लस माइनस 70 प्लस हाँ, 7,0 प्लस माइनस 70 मैम. प्लस ये 7,0 मैम. हाँ, और इसेंट्रिसिटी 4/3. this is c. Eccentricity is always greater than 1. अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया कि this eccentricity of a curve is 4/3, so which curve is this? So you can imagine that which curve is this? C. Eccentricity is greater than 1. It means it is hyperbola. और अगर 3/4 हो जाती less than 1, so it is ellipse. Okay? तो अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले, if a eccentricity of a curve is 4/3, so you must know that the eccentricity of hyperbola is greater than 1. So if it is greater than 1, then curve is hyperbola, and if eccentricity is less than 1, then curve is ellipse. पैराबोला में eccentricity नहीं होती, सर्कल में eccentricity नहीं होती, इसलिए eccentricity का क्वेश्चन आएगा तो आपको ellipse और hyperbola पे ध्यान देना है. समझ गया? Okay, and we know that eccentricity is equals to c upon a. This implies c is equals to ae. Okay, and we know that c square equals to a square plus b square, है ना. तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट. आपको दिया हुआ है वर्टिसेस दिए हुए यानी a की वैल्यू पता है ना. a की वैल्यू तो हो गई, a की वैल्यू हो गई आपके पास 7 स्क्वायर यानी 49 प्लस b स्क्वायर. अब यहाँ इस इक्वेशन में b c इक्वल्स टू a e अगर आप रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी. देखो यहाँ 4/3 है, e की वैल्यू 4/3 सब्स्टिट्यूट करोगे और b स्क्वायर c इक्वल्स टू a e, तो e की वैल्यू 4/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा
से क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की इक्वेशन, तो यहाँ पे पुट करेंगे c इज इक्वल्स टू a e, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो c इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस b स्क्वायर, and you know the value is a square into 16 by 9 equals to 49 plus b square. तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी a स्क्वायर और b स्क्वायर, मतलब हमें वेरिएबल एक ही रहना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। b को भी चेंज कर सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो जब हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखते हैं तो दिस इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड वी नो दैट c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर plus b square, and when we divide all the side by a, c square equals to a square plus b square divided by a, c square upon a square equals to 1 plus b square upon a square. So this is e square. E square equals to 1 plus b square upon a square, है ना? तो b square equals to हो गया a square a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1, ये b स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो यहाँ हम b स्क्वायर की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16 a स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 49 प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर, व्हाट इज द e स्क्वायर 9 1। Let me change the slide. Note हो जाएगा मैम। 16 a square by 9 equals to 49 plus a square, 16 by 9 कॉमन लेंगे, है ना? यहाँ देखो 16 a square by 9 कैंसिल हो रहा है, this term is cancelled, only you will get 49 minus a square, and this implies a square is equals to 49, a square equals to 49 आ गया आपके पास। अब बस इसकी वैल्यू यहाँ b में पुट कर दो, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 49 इंटू 16 by 9 minus 1, so 16 minus 9 is 5 by 9, 49 into 5 upon 9, this is the value of b square। ये b स्क्वायर की वैल्यू हो गई, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास हाइपरबोला की। देखो करके देखो क्या ये आ रहा है, चेक करो अगर आंसर किसी के पास बुक है तो। ये आ रहा है 49 into 5 by 9, है ना? तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला 5 कैसे बचा? 16 मैम minus 7 आएगा ना? है ना बेटा, 16 minus 9 मैम 7 by 7 होता है 16 minus 9। 7 by 9, 49 into 7 by 9, है ना? यस मैम। ये क्या बातें कर रहे हैं तुषार और अनुराग आपस में? तो पढ़ाई में ध्यान दे दो या आपस में बातें कर रहे हो? तुषार, अनुराग, अमित, हो गया ये सॉल्व? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 15th क्वेश्चन। क्या था लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन था आपका ऊपर जाओ। हाँ, फोकाई 0, प्लस माइनस √10 एंड पासिंग थ्रू 2, 3, ओके। 0, प्लस माइनस √10 पासिंग थ्रू 2, 3। मैम पासिंग वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं इनको इक्वेशन में पुट करके करते हैं क्या हमेशा? पासिंग मींस ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। अगर आपको ये इलिप्स है तो ये यहाँ पे कहीं पे भी 2, 3 मान लो ये पॉइंट है, तो ये कर्व पे लाई कर रहा है, इट मींस दिस पॉइंट सैटिस्फाई द
plus minus root 10. Okay, fast equation of hyperbola. ये अमन, what are you talking? पहले पढ़ लो बेटा, चैटिंग में लगे हुए हो. Equation of hyperbola. Equation of hyperbola: x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. So passing through, Aman, I am solving your query. Please look here. Passing through 2 formulas to substitute value of b square 9a square equals to a square b square. Now we have to change this equation in one variable because only one point is given. When we solve these type of questions in LS, then you can see that 2 points were given. But here only 1 point is given, so and variables are 2. So how we change it? We substitute the value in here. C square equals to a square plus b square, and the c square is equals to root 10. So c square is 10 equals to a square plus b square. So b square we can substitute 10 minus a square. To substitute the value of b square and convert this equation in one variable. We have equation Aman. सो गया मैं वो क्वेश्चन पूछ के भाग गया. हाँ, वो कन्वर्जन चैटिंग में लगा हुआ है. किससे बात कर रहा है पता नहीं. क्वेश्चन तो वही 4 पूछ रहा है कि मुझे नहीं आ रहा. 4b square minus 9a square equals to note down this equation. 4b square minus 9a square is equals to a square b square, and we know that c square equals to a square plus b square. This is 10. Now substitute the value of b square is 10 minus a square. Substituting the value of b square. So 4 into 10 minus a square minus 9a square is equals to a square b square. 40 मैंने b minus स्क्वायर घटा है. हाँ अमन बोलो. इधर पे b square करेंगे, यहाँ ना सब्स्टिट्यूट करेंगे. So here 40 minus 13a square is equals to 10a square minus a raised to power 4. So your equation is a raised to power 4 minus 23a square plus 40 equals to 0. So a square we can take x. Let a square be x. Then the equation is x square minus 23x plus 40 equals to 0. Yes, find out the factor. 40. Convert it into 23. Now, 40 के factor. दिमाग लगाने दो. मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दो. हाँ, ऐसा नहीं आएगा, इतना दिमाग नहीं है. हो जाएगा ना 40. 23 आना चाहिए. माइनस बी माइनस की कोई मिस्टेक तो नहीं है ना. -4 नहीं है मैम. नहीं है. 10 minus 13 minus 13a square minus 10a square is 23 a square. A raised to power 4 plus 40 equals to 0. Factors करो.
प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac से भी करेंगे तो भी फैक्टर 23 का स्क्वायर। हाँ 23 का स्क्वायर लेना पड़ेगा अपॉन 2 हाँ हो जाएगा मैम, स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं इसको। इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो ए स्क्वायर की फिर ए स्क्वायर की 3 स्क्वायर बी स्क्वायर अब हम कैलकुलेशन करके देखो ये तो हो जाएगा मैम। डाउट हुआ था ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो लिया है। ये डाउट है ये मेरे है क्वाड्रेटिक नहीं, अब सही है। हाँ है ना आपकी इक्वेशन यही बनी थी जब आपने यहाँ तक हो गया था मैम, सॉल्व नहीं हो रहा। ये सेम इक्वेशन यही बनी थी क्या मैम अच्छा तो मतलब ठीक है ना यहाँ तक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है कोई प्लस माइनस का साइन की मिस्टेक नहीं है ना ठीक है तो बस इसके ठीक है, हो बाद जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपको जो 23 का स्क्वायर कर लो अभी कर ही लेते हैं सॉल्व जो भी 23 का स्क्वायर माइनस 160 अपॉन 2 दिस इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर देन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ a स्क्वायर हियर मैम 529 minus 160. 529 माइनस 160 369 मैम 369 ओके 369 किसका स्क्वायर हो गया 369 23 हाँ किसी का स्क्वायर होगा ना स्क्वायर नहीं है मैम, ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्टली अरे मैम नहीं है मैम। 360 मतलब 529 माइनस 160 160 71 करके आएगा ना मैम। 471 आएगा ना 471 नहीं मैम 469 मैम 469 471 किसी का स्क्वायर है नहीं मैम हो जाएगा, अरे बस मैम ये ये मैम हो जाएगा मैम यहाँ से तो हो जाएगा ठीक है ठीक है 371 तो स्क्वायर है किसका 471 या 371 अंडर रूट 371। आंसर 371 किसी का नहीं है स्क्वायर किसी का नहीं है मैम 371 मैम मल्टीप्लाई करो वो खुद से ही होगा ये पता नहीं इन्होंने क्या मल्टीप्लाई किया 23 का स्क्वायर ही नहीं आया इन्हें 99 है मेरी बारी है मैम हो जाएगा, बस कर लेंगे। मेरी बारी आ गई मेरी बारी आ गई 529 minus 160 तो 71 करके आएगा 371 आएगा अरे किसका स्क्वायर है 529 में 69 से कहाँ से आएगा अभी तो तो क्या आएगा अरे तो भाई तो 29 है यार कैलकुलेटर नहीं होगा मैम मैम इसी छोड़ो को लेके बैठेंगे क्या आज? आप बाद में कर लेंगे कैलकुलेट हो जाएगा बाद अच्छा ठीक है ना ओके यू ट्राई टू सॉल्व दिस व्हाट इज द आंसर चेक एंड वी डिस्कस अगेन ओके यहाँ तक ऐसे करना है मेथड यही रहेगा हाँ मैम लेके फाइनल में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं क्या क्या बेटा फाइनल में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं हाँ बिना और क्या मार्क्स क्यों नहीं होंगे है ना बिना मार्क्स के कैसे चलेगी गाड़ी ठीक है आंसर तक नहीं पहुंचे मैम तो फिर पास हो जाएंगे ना स्टेप्स के होते हैं लेकिन फिर भी पूरा सही तो करना ही पड़ेगा ना अच्छा अब देखो अब आ गई मिसलेनियस की हाँ एक्सरसाइज कल करते हैं नहीं एक दो क्वेश्चन करेंगे आज अभी है 10 मिनट है ठीक है मैम कैसे करते हैं अच्छे माइंड थोड़ा दिमाग लगा अभी कल बेटा ये चैप्टर खत्म करना है कल मंडे से नया शुरू करेंगे कौन सा हाँ मैम हो जाएगा कल में मंडे को शुरू कौन सा करना है ये बताओ मैम स्ट्रेट लाइन करवा दो। स्ट्रेट लाइन करवा देते मैम हैं ठीक है ट्रिग्नोमेट्री लिमिट डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
मैम डिफरेंशिएट स्ट्रेट लाइन करा देगा मैम। नहीं मैम, ये मैम पढ़ा कोई दो लिमिट डिफरेंशिएशन एंड वाला डेरिवेटिव। चैप्टर भी है क्या? लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। नहीं बेटा मैम अभी डिफरेंशिएशन में क्या किया? अभी सुनो, अभी आप लोग इक्वेशन पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे हो, तो स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा कंटिन्यूएशन में। ये तो फिर आप बिल्कुल अलग टॉपिक पे चले जाओगे तो ये टॉपिक वापस भूल जाओगे, इसलिए भी स्ट्रेट लाइन ही करेंगे। अभी सीक्वेंस ऑफ सीरीज तो मैंने छोड़ ही दिया है, ठीक है। See the question number, example number 17. The focus of a parabolic mirror, as shown in the figure, is at a distance of 5 centimeters from its vertex. The focus of this mirror is 5 centimeters from its vertex. If the mirror is 45 centimeters deep, find the distance AB. Find the distance AB. It means find the diameter of the mirror. ओके, लुक एट द मिरर। ऐसा मिरर आपने देखा होगा, हेडलाइट्स होती है कई बार, और वो इस तरह की बनी होती है ना, नीचे से सर्कुलर होती है इस तरह से, है ना। मैम इसमें ये कहा दिया है इसका वर्टेक्स एक्सिस पे है। ये 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। फोकस ऑफ पैराबोलिक मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ नहीं मैम इसका वर्टेक्स एक्सिस पे ये कहाँ दिया हुआ है कि वर्टेक्स भी एक्सिस पे है? यस मैम। वर्टेक्स तो एक्सिस पे होगा ना, ओरिजिन पे ही। मिरर आप लाइन में खींचोगे, वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। मैम वर्टेक्स तो पीछे भी हो सकता है। अभी हाँ, A is equals to 5 सेंटीमीटर, क्योंकि पैराबोला में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं फोकस के, a, 0. So A is equals to 5, then substitute the value in y square equals to 4ax, because your parabola is symmetric about x-axis. So y square equals to 20x, and the coordinate is 45 centimeter deep. So this length is, total length is 45 centimeter. So we substitute x equals to 45, then y square equals to, this point is 45, 0. So we want to find out this length, this coordinate, this length, y-axis. So x equals to 45, then y square equals to 900. 20 into 45 is 900, and y is equals to plus minus 30. It means this distance is 30. So total distance AB, the distance AB is 30 plus 30 equals to 60 centimeter. The distance AB is 60 सेंटीमीटर। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन पहले हम बुक एक्सरसाइज का देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20, कल कर लेंगे। ये एक क्वेश्चन देखो क्यों, क्योंकि जब आपको आएगा नहीं तो फिर कल तो अभी बहुत सारे केबल, रोडवे, आर्क, रॉड, एरिया, ये ना आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, इतने क्वेश्चन करने हैं। इफ अ पैराबोलिक आवाज नहीं आ रही मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा बोर्ड दिख रहा है, मैम कट के आ रही है। ठीक है। नहीं मैम वो रुका हुआ है, पेन रुका हुआ है। फाइंड द फोकस, इसका फोकस पॉइंट निकालो। रिप्लाई कैसे दे रहे हैं? आवाज नहीं आ रही तो मैम आवाज अटक रही है। So this coordinate, this point is 5, 10. 5, 10. Substitute 100 equals to 28. So A is equals to 5. So focus point is 5, हाँ, इतनी बुरी तरह से नींद कौन ले रहा है? ओके, पुरानी आदत है मैम। अच्छा ठीक है, तो कल ऐसा झूठ बोलते थे। मिसलेनियस की एक्सरसाइज खुद ही करोगे, चलो, है ना। मैम नींद आ अभी रही वो तो क्वेश्चन सब हुए कर लेंगे, आप एग्जांपल कराना। करेंगे ना मैम अभी। है, इतनी सुस्ती आ रही है मैम सब कुछ कर ले,